listening to the Ranga Rants, and we are live. Well, we are not live. Like, basically, I am recording this episode from my bed inside my quilt, and this is happening for the first time ever. Basically, I was too lazy to sit and record in the storeroom, तो इस वजह से मैं लेटी हुई हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसको रिकॉर्ड करने के फ़ौरन बाद आई विल स्लीप और मे बी आई विल स्लीप वाइल रिकॉर्डिंग इट तो वील सी व्हाट विल हैपन. I procrastinated a lot. I procrastinated every single thing, लेकिन specifically for this episode मैं पिछले 5 घंटे से सोच रही हूँ कि मैंने रिकॉर्ड करना है. It's 2:30 a.m. in the night and I just started recording it after scrolling phone in my bed for an hour. मैं 1 घंटा पहले लेटी थी कि now I'll start recording और मैंने 1 घंटा स्क्रॉल किया है. उससे पहले 1 घंटा मैं अपने Instagram stories बनाती रही हूँ. Instead of talking on the podcast, I kept talking on Instagram story because I was procrastinating so much. Procrastination एक इतनी बुरी चीज़ है ना कि आप उस एक चीज़ को अवॉइड करने के लिए दूसरी चीज़ में एफर्ट डाल रहे होते हो. जैसे अगर मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने को प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ लेकिन एट द सेम टाइम आई एम टॉकिंग ऑन स्टोरीज. दैट्स द सेम थिंग. बेसिकली आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट. एक चीज़ है जिसकी 15 दिसंबर को डेडलाइन है. मुझे नहीं लगता कि मैं वो चीज़ कर पाऊँगी. एवरीवन प्रे फॉर मी कि मेरा काम हो जाए. पता नहीं, आई डोंट नो. आई एम जस्ट आई डोंट नो, मुझे बहुत सुस्ती चढ़ी हुई है. एंड आई एम रियली टेकिंग माई लास्ट पॉडकास्ट वेरी सीरियसली कि आई एम गोना बी स्लो इन माई लाइफ एंड नॉट गोना डू एनी थिंग. लेकिन आई रियलाइज कि दैट कुड नॉट हैपन फॉर मी बिकॉज देयर इज सो मच टू डू, so many deadlines, so many submissions, or that cannot happen. I still have to do the bare minimum, which is very sad. लेकिन मेरे मोस्टली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि मैंने पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करनी होती है और आई हैव दिस एट द बैक ऑफ माई हेड कि आई हैव टू रिकॉर्ड इट एंड एडिट इट. लेकिन अगर वो जब फिर वो सब कुछ हो जाए तो इट गेट्स नॉर्मल. तो आई होप कि कल का दिन बेहतर हो. लेकिन आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोल्ड के अंदर मुंह घुसा के पॉडकास्ट बना रही हूँ. लेकिन दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस. आई होप द ऑडियो टर्न्स आउट वेल. इफ इट डजंट तो बेस्ट ऑफ लक. I don't know. I'm interested to know what you guys are doing. Are you guys traveling at 7 a.m. in the morning to your university or college, or are you also in your quilt? Whatever it is, let me know. DM me right now. Okay, hey, I'm doing this while listening to your podcast. क्योंकि I am procrastinating right now. I'm not. अब तो मैं podcast बना रही हूँ तो अब तो नहीं मैं procrastinate कर रही obviously. अब तो मैं बस लेटी हुई हूँ. लेकिन it's so unserious for me to just lay down in a quilt and record a podcast. लेकिन it's happening, or if I can do it, so why I should not do it? Anyways, this is not the topic for today's podcast. We'll talk about marriage. My point of view on marriage. And मैं पूरी बैक स्टोरी बताती हूँ क्या हुआ है. Let's take a break, come back and just start talking on the podcast because it's gonna be an interesting listen. So my mom gets this call 4 days back and there's just some relative of ours who was told by some other relative of ours that I got engaged, and my mom didn't tell anyone, nor did my dad or my siblings or me. And I got engaged and they're very sad that my parents didn't share that with them. So it was just very funny for all of us and we were laughing and stuff. Lekin that made me realize कि the rumors are in. इसका मतलब यही है कि it can happen. Obviously it's not gonna happen anytime soon, but it can happen, right? और फिर कुछ अर्सा पहले I shared that पहले भी अपने podcast में कि my friends getting married actually. और ये पहली बार है बेसिकली. इस साल मेरी एक दोस्त की engagement हुई, बहुत क्लोज दोस्त की. एक मेरी दोस्त की शादी हो रही है. So I'm seeing people of my age getting married and getting engaged, getting into a relationship. So obviously I am obviously it could happen for me too, right?
मैंने क्या बात करनी थी, कम्प्लीटली जोन्ड आउट. तो इट्स हैपनिंग. खैर, तो मेरी दोस्त की हो रही थी एंड आई अपलोडेड, और मतलब coincidentally we share the same name, even though it's not spelled and pronounced in the same way, like it's kind of same. So I posted that story and everyone like misunderstood that it's my dholki, and they started like asking ki, what, congratulations, what? And I was like, no, it's not me, not me. And most of the people first reaction was ke, oh thank god it's not you, tum to abhi itni choti ho. Like I was like, real, right? लेकिन ये सीन है. लेकिन इसका मतलब यही है कि obviously मतलब I am in that age to comment on that. Like I am like 23 years old, so it's okay for me to comment on that, kyunki I have seen some people of my age that are single, and some people of my age that are like have like kids and are married. तो मतलब मैं देख रही हूँ कि एक तरफ मेरे एज के लोग एक तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक तरफ मेरे एज के लोग दूसरी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. Some people are in a relationship, some are engaged, some are married, some are mothers, some are single. So I just want to just share my point of view regarding it, क्योंकि just all of this just made me feel like कि oh my god, I need to make a podcast on that, कि what I feel, because I never talked about it. और I मतलब कि मेरा मैरिज के बारे में स्टैंस पिछले साल बहुत डिफरेंट था जो मेरा अब है. तो मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट राइट नाउ, बिकॉज आई नो कि आफ्टर अ वाइल इट विल चेंज अगेन. तो लाइक आई कैन शेयर इट अगेन कि नाउ आई फील दैट, और मुझे पहले ये डाउट्स थे लेकिन मेरे ये डाउट्स ख़त्म हो गए, या नाउ आई फील दिस एंड दिस एंड दिस. ठीक है, तो इस वजह से आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट. मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन मैं हमेशा डर जाती थी क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन ये पॉडकास्ट सुन रहा है. एंड आई गेट स्केयर्ड समटाइम्स कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूँ दैट कुड कॉज सम कॉन्ट्रोवर्सी, कि ओ माय गॉड रबिया ने ये कह दिया वो कह दिया, इवन दो मतलब मेरा इंटेंशन ये नहीं होती. लेकिन इफ़ यू गाइज नो द फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्ट, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन टॉक ओपनली अबाउट एनी थिंग. तो ऑब्वियसली जो मुझे सुन रहा है, आई एक्सपेक्ट इट टू बी माई पीपल एंड देम टू लाइक know or connect to me with beyond the bond we share by blood or by anything. ठीक है, तो इस वजह से I just don't want कि मैं कुछ भी यहाँ पे बोलूँ और वो अगले दिन someone is calling my mom and saying कि मैंने सुना है कि रबिया ने अपने पॉडकास्ट में ये बोला है. तो that shouldn't be. If you're listening to my podcast, तो we share a bond beyond that, beyond the blood relation or beyond whatever we share. So like, okay, we are fine, cool, ठीक है. तो yeah, even though I'm not gonna say anything like that, like, and I'm just scared कि कोई कुछ ना बना ले, क्योंकि this topic is like a bit मतलब I don't know, sensitive, not even sensitive, लेकिन everyone just talks about that, लेकिन at the same time you sometimes cannot share it with हर किसी का इस पे opinion होता है, लेकिन आप share नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको कहे oh my god बेशरम, या oh my god ये कोई सोचने वाली चीज़ है, ये वो फला फला. लेकिन आई एम शेयरिंग इट because I have a podcast, और अगर मेरे पास podcast है तो फिर मैं क्यों ना बताऊँ सबको कि what I feel. Now another disclaimer is that कि again this is completely my thoughts, my opinion, or what I have seen with the people that are single and the people that are married that are close to me. So this is completely based on my observation and my point of view, and obviously yours can differ as well. और obviously अगर मैं आज ये सोच रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल को जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हो सकता, मेरा फॉर श्योर हो जाएगा. जैसे आई डोंट लाइक एक्टिवली सपोर्ट एवरी सिंगल थिंग दैट वुमन डज. लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, यू ऑल नो मलाला यूसुफजई, ओके. तो उसका एक बार वोक पे इंटरव्यू आया था एंड वेयर शी सेड कि शी डोंट वांट टू गेट मैरिड, और वो पता नहीं क्या समझती है शादी को, मतलब वो मतलब कि शी जस्ट सेड कि शी डोंट वांट टू गेट मैरिड और व्हाई वी शुड गेट मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट. और उसके 5-6 महीने बाद उसकी शादी हो गई बेसिकली, एंड शी इज़ लाइक हैप्पीली इन लव विद दैट मैन. तो everyone was like, oh my god, hypocrite, oh my god, why would she say that? लेकिन I understand that क्योंकि I relate to that too, क्योंकि obviously मुझे लगता है कि
it's different when you're in it and when you're not in it. So basically I'm single right now, or I have never been in a relationship with anyone. ठीक है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि I am living a very peaceful content life. I am independent. I love being with my parents. I have friends who I meet, or I have siblings, and I am having fun, or I'm living the life the way I wanted. And there are so many things that I couldn't get in my childhood or when I was a student, or now when I finally have a little, when I'm financially independent. So there's a lot of things that I could fulfill more for myself that I couldn't do when I was a student. ठीक है. तो मुझे लगता है कि उस सब चीज़ में आई एम सो कॉन्टेंट विद माई लाइफ एंड एवरीथिंग. और मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं, उनमें से मोस्टली को मैंने रोते ही देखा है, सीरियसली. मतलब I have never seen most of my friends in a solid relationship जहाँ पे लड़का जो है वो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा और बहुत अच्छा, बहुत ग्रीन फ्लैग है और बहुत अच्छा है. ऑब्वियसली ऐसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मेरे क्लोज दोस्त हैं ना, वो बहुत परेशान है अपने रिलेशनशिप से. तो जब मैं उनको रोते हुए देखती हूँ तो फिर ऐसे क्यों मेरा दिल चाहेगा कि मैं उस पंगे में पड़ूँ. तो अच्छा, तो बेसिकली लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. सो बेसिकली जब मैं छोटी थी तो ऑब्वियसली मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था. और एज आई सेड कि माई ड्रीम वॉज ऑलवेज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टू हैव अ जॉब, टू परस्यू अ करियर, टू बी एजुकेटेड एंड हैव अ डिग्री. खज मुझे कि ऑब्वियसली माई पेरेंट्स ऑलवेज वुड ड्रीम दैट फॉर मी कि तुमने आगे करना है, ये करना है. दे वुड नेवर से कि ओ तुमने आगे शादी करनी है तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा. ऑब्वियसली वो चीज़ भी थी, बट दे वुड pressurize me more into studies because they want me to pursue that degree, or have education, have a degree, have a bachelor's degree. My mom and dad both really want me to do masters too, और वो मुझे रोज़ ये कहते हैं कि you are delaying your masters, जाके masters में admission लो भी जाके, ठीक है. तो they just always cared about my education more. इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने उनको मेरी शादी की फिक्र नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मैंने कभी भी उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं, और मुझे हमेशा यही था कि आई वॉन्ट टू हैव अ डिग्री, आई वॉन्ट टू हैव अ जॉब, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट. ठीक है, उस सब से रिलेटेड. तो मैंने बचपन में ये चीज़ सोची नहीं थी. और इस वजह से सिंस ऑब्वियसली लिविंग इन पाकिस्तान देयर आर सम रिजर्वेशंस बिटवीन मैन एंड अ वुमन. और जब मैं देखती थी कि व्हेन आई यूज्ड टू गो इन academy and I was 13 years old, 14 years old, and I was seeing girls who were छुपके से talking to boys. तो मैं, और अब now I realize कि वो इतनी छोटी एज थी. You're 14 years old and you're talking to a guy. First of all, your parents that expect that from you. और मैं हर किसी को यही चीज़ बताती हूँ कि again that's my point of view, लेकिन I think your पेरेंट्स आर सेंडिंग यू समवेयर. और यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सीन होता है. यूनिवर्सिटी में दे नो कि देयर गाइज इन क्लास, तो ऑब्वियसली आपका उनसे इंटरेक्शन होगा, आपका उनसे ग्रुप बनेगा, स्टडी ग्रुप बनेगा, और उसके बाद हो जाएगी. और आई लव द वे माई पेरेंट्स कि अडेप्टेड टू इट, खज अब इतना चिल सीन हो गया है. और अब जो है कि इट्स नॉट ऑकवर्ड और एनीथिंग. लेकिन व्हेन आई वाज इन when I was not studying in co-education, तो उस वक्त obviously they don't expect me कि मैं Facebook पे किसी लड़के से बैठ के बात कर रही हूँ. तो मुझे लगता है या Instagram पे या इस सब कुछ करके, तो इस वजह से मुझे लगता है कि, और obviously और seeing that girls would annoy me because I would feel कि इतनी क्या पड़ी है कि you have to talk to the guys. और obviously they are talking romantically. आप कि उस टाइम पे बहुत कम होता था कि यू आर आई एम टॉकिंग टू देम एज अ फ्रेंड. और एट द सेम टाइम मुझे ये भी होता था कि आपका अगर किसी से गर्ल्स है, या फिर आप किसी, नॉट गर्ल्स, लेकिन अगर आप किसी के साथ बैठे हो, जैसे हमारी दोस्तियाँ कैसे हुई हैं, हमारी नेबर्स से अपनी दोस्ती हो गई, या मेरी अपनी क्लास में अपनी दोस्तों से हो गई, या मैं किसी ग्रुप में थी, किसी कॉमन चीज़ पे हुई, तो और किसी कॉमन चीज़ पे आपकी उस इंसान से दोस्ती हो गई और वो आगे चली गई. लेकिन you are active, you are on Facebook actively trying to seek male friendship because you want that.
तो मुझे लगता है कि देयर इज जस्ट सो मच रॉन्ग विद दैट. और मेरे लिए प्राइमरली यही था कि माई पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट दैट फॉर मी. और वो लड़के सारे थे भी बहुत फजूल किस्म के शोखे, तो इस वजह से उनको लिफ्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है. तो एनीवेज it would make me uncomfortable just seeing girls मत के टेलिंग मी स्टोरीज कि ओ माई गॉड आई मैसेज दैट गाय और वी टॉक्ड और वो सब कुछ है, ठीक है. तो आई वुड नेवर वुड वांट दैट फॉर माई सेल्फ. और उस टाइम तक मुझे बहुत मैं ये नहीं कहती ठीक था कि नहीं था, बट आई वॉज वेरी मच आई वुड नेवर गो इन टू रिलेशनशिप विद अ गाय कि आई डोंट लाइक दैट. एंड आई वुड नेवर कि क्राई फॉर अ मैन और बी विद अ मैन और ये सब कुछ है. कि आई वुड नेवर बी I would never do that and I would never go in a relationship, right? अब उस वक्त obviously I never talked about with my mother or my dad. Obviously not with my dad, लेकिन मैंने और मेरी मामा की भी ऐसे आपस में ऐसी कोई बात भी नहीं होती थी. मेरी अपने भाई से भी होती थी, लेकिन obviously हमें पता था कि we got no games. Not that we got no games. लेकिन again with male friends, again with me telling all of this is my point of view. And obviously I have grown out of it और अब I see it differently. लेकिन मुझे again मैं सबको ये कहती हूँ कि if your parents don't accept that from you, तो maybe कि don't get yourself in trouble. or those guys are not even worth it. उनके बाद कि I don't know कि क्या होगा. लेकिन यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो तो वो थोड़ी मेच्योर अप्रोच होती है, या स्पेशली वंस यू टर्न 20. लेकिन 15-14 इज़ अ वेरी कि मुझे नहीं लगता कि आई कुड ट्रस्ट अ बॉय हु इज़ 14. आई वैसे यू जनरली कैन नॉट ट्रस्ट मैन. लेकिन मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी डेंजरस एज. बस आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. खैर, वी शुड मूव फॉरवर्ड. एनीवेज मैं यूनिवर्सिटी में गई. यूनिवर्सिटी में भी आई वॉज वेरी हालांकि मैं वहाँ गई तो मुझे ज़्यादा नज़र आते थे रिलेशनशिप, लेकिन जो मैं यूनिवर्सिटी में रिलेशनशिप देखती थी उनमें ज़्यादा सिंसेरिटी होती थी और मुझे उस रिलेशनशिप का तुक नज़र आता था. तो कि वो क्या है, और मुझे कि ज़्यादा दैट वुड मेक मोर सेंस, राइट. तो लेकिन फिर भी आई वॉज वेरी ऑन द फैक्ट कि आई वॉज very strong on the fact that I would not get into relationship. Not that anyone asked, but let me clear you, not that anyone asked कि मैं कहूँ कि no, I'll reject you. लेकिन I was also not seeking for it or not giving that energy कि oh my god you can ask me if you want. ठीक है. तो उस वजह से फिर कि हो गया. but then when I turned 20, so I started having an open conversation. My mom started having an open conversation about it with me. She won't mind if I like someone or someone likes me and he's a good guy. She would want to. और मुझे लगता है कि 20 is a nice age. और इस वजह से मुझे लगता है कि personally I would advise कि 18-20 से पहले don't put yourself into it. और obviously you can find genuine love फ्रॉम समवन अर्ली एज में भी. तो लेकिन मुझे लगता है कि 18 से पहले मुझे नहीं लगता कि आप उस राइट स्टेट में होते हो कि आप अपने लिए इतना बड़ा फैसला ले सको, राइट. और 18 के बाद क्योंकि आप जो है वो बालिग हो जाते हो, तो इस वजह से मुझे लगता है कि यू जस्ट सी थिंग्स डिफरेंटली वंस यू आर इन यूनिवर्सिटी. यू डू हैव अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच. और मैं ये नहीं कह रही कि आपकी फीलिंग्स पहले जेन्युइन नहीं होती हैं, बाद में नहीं होती हैं, बाद में हो जाती हैं, पहले नहीं होती. आई जस्ट थिंक यू जस्ट थिंक ऑब्वियसली वी आर ग्रोइंग टाइम बाय टाइम. लेकिन आई जस्ट थिंक कि 18-20 के बाद या फिर इवन इफ़ यू वांट टू कि गेट मैरिड और गेट इनटू अ रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है कि आई जस्ट थिंक कि उसके बाद यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ओ इफ़ आई फाइंड समवन गुड तो आई वांट टू get married to them, right. वैसे मुझे लगता है 18 भी बहुत कम एज है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि यू कैन फाइंड genuine love in that age, क्योंकि आई हैव सीन पीपल फाइंडिंग इट एंड आई माशाल्लाह दे आर वेरी हैप्पी विद लाइफ. एनीवेज, तो जब when I turned 20, तो I started having this conversation with my mom, and then I realized कि my mom won't mind if I get if I am with a nice guy or she likes him and कि ये सब कुछ होगा.
लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि और उसके जब मैं 20 थी तब कोविड आ गया. उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ तो वैसे ही मतलब कि इट वाज माय फाइनल ईयर. और अगेन देयर वर नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस थी और मैं और सारे बस बाहर खड़े थे कि ओ माय गॉड रवि हमें हाँ कह थे. ऐसा कुछ भी नहीं था. और इस वजह से मुझे लगता है कि अभी ना मुझे कभी कभी मम्मा कह भी देती हैं, मेरी मम्मा के ना, यू डिडंट डू एनीथिंग, आई वुड हैव लव्ड यू टू लाइक I would have loved a loved marriage for you. Like, I would have loved you to get married to someone you loved. ठीक है. And I tell him कि मम्मा कोई ऑप्शन भी नहीं थी. मतलब ऐसे नहीं है कि I rejected and I was reserved. ऐसा भी नहीं है. अगर मुझे कोई अच्छी ऑप्शन मिलती है ना, मतलब I would have think about it. ऐसा कुछ भी नहीं था. अगर कोई अच्छी ऑप्शन थी भी, I don't think कि the person was attracted to me. ठीक है. तो मुझे लगता है कि मेरा ये मसला है कि ये मैंने बहुत अपनी दोस्तों को देख के सीखा था कि वो रो रही हैं कैसे लड़के के पीछे जो उनको मुंह नहीं लगा रहा, घास नहीं डाल रहा, किसी और लड़की के पीछे गया हुआ है. तो तब वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में ना इस्टेब्लिश कर ली थी कि आई वुड नॉट बी अट्रैक्टेड टू समवन हु इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू मी. ठीक है. अगर मुझे कोई, और मतलब ये तो मेरा हर चीज़ में है ना, मैं फ्रेंडशिप्स में भी ये कहती हूँ, हर चीज़ में ये कहती हूँ कि आप किसी को इतनी एनर्जी जो आपको दे रहे हैं, तो आई ऑलवेज रिटर्न एनर्जी. तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं तो एवं किसी को मुंह नहीं लगाऊंगी जो मुझे नहीं लगा रहा, और मैं तो नहीं रहूँगी. और इस वजह से जो है मुझे लगता है कि इस वजह से मुझे ना पहले ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती थी, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मैन जस्ट कम एंड आस्क यू. कुछ कभी कभी आपको खुद भी अवेलेबल एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि मैंने कभी भी नहीं दी. समटाइम्स यू हैव टू शो कि ओ इफ़ यू विल आस्क तो आई विल एग्री, वरना अगला बंदा भी, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि इफ़ समवन इज़ सो हेड एंड हील्स इन लव विद यू कि इवन इफ़ यू डोंट केयर दे विल कम आफ्टर यू. लेकिन अब जो है वो म्यूचुअल होता है, तो आपको अपनी साइड से भी थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट शो कराना पड़ता है कि अगला बंदा जो है वो आपको reach out करे and they can ask you out, or not out, लेकिन they can like confess to you. अगर उनको कभी कभी होता है कि अगर उनको लगेगा, क्योंकि मुझे अगर मेरे लिए ऐसा है कि I would not like be attracted to someone who's not attracted to me, मुझे लगता है कि it could be the other way as well, कि अगली बंदी अगर आपको उस तरह भाव नहीं डाल रही तो they won't ask you, क्योंकि you're not giving the available energy कि oh I'm interested or I won't mind if you'll ask me. लेकिन a lot of people say कि that does not is the same for men, और उनको अगर कोई पसंद है they'll come after it, और I have seen they do actually. तो basically मैंने जिस इंसान ने मुझे अटेंशन नहीं दी उसको मैंने कभी दी नहीं, तो वो तो लिस्ट से वैसे ही आउट हो गया. ठीक है. जो मुझे लगा है कि जो अटेंशन दे रहा है, जब मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि देयर इज सम गाय हु इज़ अट्रैक्टेड और हु माइट बी इंटरेस्टेड, तो मुझे इतना डर लगना शुरू हो जाता है और आई डिस्टेंस माई सेल्फ विद दैट गाय, क्योंकि मतलब कि मुझे वो लड़का उस तरह पसंद नहीं है. ठीक है. और इतनी बार ऐसा हुआ है कि इतनी बार नहीं ऐसा हुआ, ओ माय गॉड, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि ना जो गाय है उसका दोस्त आके मुझे कन्विंस कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा है प्लीज़, मतलब कि बहुत बार ऐसा हुआ है. और मैं कह रही हूँ भाई मुझे नहीं पसंद वो. तो जो है ना तो ये भी हुआ है कि इफ़ आई, मतलब कि मैंने कभी कभी देखा है कि समवन इज़ इंटरेस्टेड एंड ट्राइंग टू डेवलप अ बॉन्ड और सब कुछ, तो मैं फॉरन डिस्टेंस कर लेती हूँ कि आई पर्सनली डोंट लाइक दैट पर्सन. कि मतलब कि इट्स नॉट लाइक आई हेट देम एंड देर आर टेरेबल पर्सन, इट्स लाइक कि आई डोंट सी देम दैट वे, और इस वजह से मैं डिस्टेंस कर लेती हूँ. और इस वजह से आई एम वेरी क्या कहेंगे, वेरी केयरफुल विद कि मैं कितना करूँ लड़कों के साथ, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं कोई ऐसा कहूँ वो कि ओ यू आर सिग्नलिंग मी, मैं ऐसा कभी भी नहीं करती. तो इस वजह से, और स्पेशली अगर मुझे लगे कि यार ये कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहे हैं तो मैं खुद डिस्टेंस कर लेती हूँ कि नहीं, मतलब कि आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड, क्योंकि मतलब नॉट दैट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ताकि अगले बंदे को गलत फहमी ना हो और आगे और ड्रामा ना हो. तो मुझे लगता है कि दोज थिंग्स आई हैव रियली
कैरिड विद ग्रेस के ज़्यादा कोई तमाशा नहीं हुआ, ड्रामा नहीं हुआ, तीसरे बंदे को पता भी नहीं चला, और आई हैव ओन्ड माई डिग्निटी एंड द अदर पर्सनस डिग्निटी, और बस मैंने डिस्टेंस कर लिया, ठीक है. और स्टिल बीइंग चिल एंड रिस्पेक्टफुल विद दैट गाय. ऐसा नहीं है कि बस मैं बदतमीजी करना शुरू हो गई हूँ, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स के मतलब यू जस्ट डोंट लाइक समवन, और इट्स नॉट लाइक कि दे आर बैड पर्सन, इट्स जस्ट लाइक कि आपकी नहीं, मतलब कि यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू देम फिजिकली, एंड इट्स, मुझे लगता है कि इट्स ओके एंड इट्स वैलिड, और मुझे लगता है इट्स वेरी वैलिड. तो और जितनी भी दुनिया आपको कन्विंस कर ले कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, दे डू दिस एंड दिस एंड दिस, मुझे लगता है कि मे बी व्हेन यू गेट ओल्डर तो फिर आप शायद कर लो, लेकिन उस टाइम आई वाज लाइक कि नो आई डोंट. और वैसे भी मुझे लगता है कि इवन इफ़ आई वुड लाइक समवन, ऑल दीज थिंग्स मेक मी सो नर्वस कि अगर मुझे कोई, मतलब कि अगर मैं कोई कह भी दूँ ना कि ओ माई गॉड मी एंड हु, या मैं फिक्शनल बुक पढ़ के कहूँ ओ माई गॉड आई वुड लव दैट टू हैव दैट लव, लेकिन फिर भी इफ़ आई सी कि समवन इज़ लाइक रिमोटली इंटरेस्टेड इन मी, तो आई जस्ट वॉन्ट टू जंप ऑफ फ्रॉम द विंडो, और आई वॉन्ट टू ईट ग्लास. मुझे नहीं, मतलब आई डोंट लाइक बीइंग इन दैट स्टेट, और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो आई डोंट इवन लाइक दैट फीलिंग, राइट. तो फिर उसके बाद आई रियलाइज्ड कि ना another type of men कि men do dry flirting, मतलब कि they'll make you feel कि you're very important, you're very beautiful, you are the prettiest woman they have ever seen, and वो सब कुछ है when, मतलब कि उनकी प्रैक्टिस में है ये सब कुछ. मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट जेन्युइन, और मतलब इस वजह से मुझे उस चीज़ पे इतना फ्रीक आउट करने की ज़रूरत नहीं है. तो नाउ आई हैंडल इट डिफरेंटली. लेकिन अब जो है, क्योंकि मेरा किसी से इतना सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि ऑब्वियसली मेरा कोई है ही नहीं, मेरा है मतलब कि ऐसे नहीं, मतलब कि अब मैं एक्टिवली किसी सोशल गैदरिंग में नहीं जा रही जहाँ पे नए और अननोन लोग हैं, तो इस वजह से वो सब कुछ बहुत कम हो गया है. लेकिन नाउ आई नो हाउ टू डील विद इट, एंड आई विल मेक अ होल पॉडकास्ट ऑन इट, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. लेकिन और मैं बात करूँगी कि how to handle this and how to identify it, क्योंकि when it's happening to you for the first time, तो you think this is very genuine and what should I do, मतलब you get very nervous. लेकिन it took me a while to realize कि men do dry flirting and they just do it for fun. They don't really care about you. They're just, मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं, they just maybe like attention, or maybe I don't know why, लेकिन मतलब कि they just want to play fake simp, और I don't know why men do it. मुझे इस पे ना मैं पूरी research करूँगी. I have a good handful of experience in it, तो I'll do research and I'll talk about it, क्योंकि I want to save you guys from it. और these are the worst guys ever, और मुझे गुस्सा चढ़ता है और मेरा दिल चाहता है मैं सबका जाके कत्ल कराऊँ जो ऐसे काम करते हैं. लेकिन men exist. They're like 60% men like these exist, so beware. I'll make a podcast on it very soon. We need to do something about it. लेकिन मुझे लगता है कि a lot of us have identified, और अब जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ तो especially with my school friends, so we're like oh my god yes. तो तो that happens too. तो basically ये सब कुछ मिला के I just never found someone, और no one found me as well जिसको लगे कि oh my god there is some chance. तो इस वजह से I have never been in a relationship, और I do not regret it, क्योंकि अगेन मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनके रिलेशनशिप के इतने ड्रामा है, इतना स्ट्रेस है कि मैं उनको देख के कहती हूँ कि शुक्र है मैं नहीं हूँ. बहुत कम ऐसे रिलेशनशिप हैं जो मैंने देखे हैं that have been successful, and माशाल्लाह to that, and I hope कि they stay like that. लेकिन मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जिनमें मतलब कि there's so many problems, और हमेशा यही होता है कि द गाय इज़ लाइक, मतलब पहले वो किस तरह था फिर किस तरह हो गया, और यू आर लाइक बेगिंग फॉर देयर अटेंशन, वो कॉल नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, ये वो इतने कोई मसले हैं ना, स्टूपिड मसले. तो मैं ये देख के कहती हूँ कि ए आई एम नॉट गोना डू दैट, बी आई एम सो हैप्पी वेयर आई एम. ये सब कुछ देखने के बाद ऑब्वियसली राइट नाउ आई एम कंटेंट विद माई लाइफ. तो ऑब्वियसली मुझे अभी मैं नहीं इस चीज़ के बारे में सोचती, या फिर मेरा दिल चाहता
कि I want to like be in a relationship or get married right now. Now we have talked about relationship, अब शादी की बात करते हैं, right? अब बात ये है कि मुझे शादी पे ना बहुत डिफरेंट ओपिनियंस सुनने को मिलते हैं. Obviously I'm in that age where I openly talk about it. People openly talk about it to me. The girls who got married early in my age would always come in and advise me कि अभी मत करना, enjoy करो जिंदगी, बाद में मिल जाएगा. लेकिन there's also some people who haven't got married yet or who are single who would say कि आगे जाके अच्छी options नहीं होंगे, अच्छी choice नहीं होगी. लेकिन पाकिस्तान में I think कि we all can agree कि ये issue है कि once you get older you don't have a lot of like options, आपको कुछ नहीं मिलता और वो बहुत जो है वो नैरो होता जाता है, ठीक है. और मैंने ये बात बहुत नोटिस की है कि people, even if their like son is 30 years old, some people, even if their son is like 30 years old, they want a 19, 20, 21-year-old naive girl who don't know anything and who's a child. Lekin the day she gets married, the day she gets married, they want her कि अगले दिन बस उसको सब पता हो. गाय जो है वो लेट 20s में भी है, फिर भी उनको लड़की जो है वो 22, 21, 20, 23 ऐसे ईयर्स की चाहिए, राइट. तो इस वजह से मुझे लगता है कि मतलब a lot of people are like कि नहीं अभी कर लो, सही उम्र का मिल जाएगा, वरना जो है बहुत मुश्किल है. And I get it where they are coming from, लेकिन I hate that about my society. So anyways, we get two different opinions from two different people. और for me, मैं सही बताऊँ, right now I don't want to get married or want to be in a relationship. मतलब अगर मुझे कोई कहे भी ना, मेरा दोस्त के ओ आई नो समवन, मतलब या फिर मुझे बताओ तुम्हें कैसा चाहिए, आई विल फाइंड समवन, आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, मतलब आई कैन सेट यू अप विद समवन. तो आई एम लाइक नो, आई डोंट वांट टू बी, मतलब आई डोंट वांट दैट. अगेन मतलब आई नो कि देयर आर सम पीपल हु आर एक्साइटेड फॉर मैरिज, और मुझे लगता है कि इट गेट्स ईजियर व्हेन यू आर मैरिंग समवन यू ऑलरेडी लव. और मुझे मतलब कि इस वजह से मैंने ज़्यादातर उन्हीं लड़कियों को शादी के लिए एक्साइटेड देखा है हु आर गेटिंग मैरिड और वांट टू गेट मैरिड टू समवन दे ऑलरेडी लव और दे आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद. तो मुझे अभी फ़िलहाल क्योंकि I don't have anyone like that, तो इस वजह से there's nothing that motivates me to get married and to be in that life, क्योंकि marriage comes with, मतलब कि even though I read and watch a lot of fiction, लेकिन I am very practical about the real life, क्योंकि वो मैं सिर्फ अपनी entertainment के लिए देखती हूँ. I don't read it and I'm like, oh my god, I want something like that to happen to me. I'm very realistic in that, and I know कि marriage come with its sheer fear of struggles और डिफ़िकल्टीज़, और आपको वो सब कुछ करना पड़ता है. और आई ऑल्सो एक्नॉलेज द फैक्ट कि द लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ इज़ वेरी कम्फर्टेबल, और इट वॉन्ट बी द सेम आफ्टर गेटिंग मैरिड, और विच इज़ बेसिकली द रीज़न वाई इट स्केयर्स मी टू गेट मैरिड. क्योंकि ऑब्वियसली गेटिंग इन टू अ न्यू फैमिली विद अ होल, मतलब एंड कॉन्टिन्यूइंग मे बी योर जॉब और ये सब कुछ, at the same time staying in contact with your family, और मतलब कि it's just a lot and it feels a lot. लेकिन मुझे पता है कि it's not like कि I hate the idea, क्योंकि एक साल पहले I was like कि I wouldn't mind if I won't get married my whole life, क्योंकि I don't want that. I want the life I have right now to be like that. और मतलब कि now even though I have accepted कि no I have to and I would like to too, लेकिन राइट नाउ मुझे मतलब कि आई एम वेरी कंटेंट विद द लाइफ. लेकिन द थिंग दैट स्केयर्स मी इज़ द सोसाइटी. मुझे बहुत बुरा लगता है कि व्हेन मतलब कि अ गर्ल हु इज़ मैरिड गेट्स मोर रिस्पेक्ट देन द गर्ल हु इज़ हाईली एजुकेटेड. जिसकी शादी हुई हुई है उसको ज़्यादा ख़ानदान में इज़्ज़त मिलती है, फिर जिसके बच्चे हैं उसको जो है, जो शादी सिंगल और अभी मतलब कि नई बच्चे, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है. तो मुझे लगता है कि मतलब कि पीपल आर वेरी बिटर एंड इट्स वेरी वियर्ड एंड आई हेट. अब ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट राइट नाउ, लेकिन आई हैव सीन कि लोग मुंह पे पूछ लेते हैं, हाँ बेटा शादी नहीं की, शादी कब करनी है, शादी क्यों नहीं हो रही.
तो मुझे लगता है दैट इज़ वेरी इंसल्टिंग एंड वी नीड टू डू बेटर एज अ सोसाइटी, क्योंकि obviously it's an important thing but that's not the only thing. And when you know for the fact के अगले इंसान का हाथ नहीं है इस चीज़ में फ़िलहाल, या फिर why would they do not want to get married, obviously अगर उनको कोई अच्छा मिला तो वो कर ही लेंगे ना, unless कि you're intentionally just rejecting people कि मुझे नहीं करनी, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन मतलब people are just so insultive to people, to मतलब के unmarried girls के it's like it's very scary. And मुझे लगता है कि the only, even though I have accepted it कि it's gonna happen, even though I am not ready for it right now, और मैं जिससे भी बात करती हूँ ना, especially the people who are with whom I have a connection through social media, और especially जो मेरी यूनिवर्सिटी के जूनियर ग्रुप है जिनसे मेरी बात होती है, they're always like you're so small right now, like we can't, मतलब कि even when I talk about it. और मुझे भी अभी यही फील होता है कि I am not ready for it, even though I have seen people who are in my age and have like kids, लेकिन I don't feel कि मुझे भी अभी यही लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ और it's not the correct age, but at the same time I don't want my parents to stress about it. I don't want कि मैं intentionally मना करूँ और मतलब कि वो अगले 2-3 साल में और वो फिर स्ट्रेस करते रहें कि ओ मतलब इसकी उम्र जा रही है, ये हो रहा है या वो हो रहा है, या फिर लोग बातें सुनाए और ये सब कुछ. तो जस्ट टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस आई वुड लाइक मतलब कि कंसिडर गेटिंग मैरिड इफ़ आई फाइंड सम, मतलब कि राइट नाउ, मतलब इवन दो आई एम नॉट रेडी एंड आई एम हैप्पी विद द लाइफ आई एम लिविंग, लेकिन जस्ट फॉर द सेक आई डोंट वांट माई पेरेंट्स टू बी वरीड अबाउट मी. इस वजह से मुझे लगता है कि I would just like do it right now, not right now लेकिन आजकल में, क्योंकि obviously मुझे लगता है कि I'm gonna turn 24 और honestly when I was 18 or 17 I wouldn't imagine कि मैं 24 तक unmarried रहूँगी. मुझे लगता था कि मैं जैसे ही graduate करूँगी ना, बस मेरे घर वालों ने कहना तुम फारिग हो और जो है ना निकल जाओ, लेकिन obviously ऐसा नहीं हुआ और मतलब और नहीं हो रहा. लेकिन मुझे लगता है कि आई कैन नॉट लाइक बी लाइक ओ माय गॉड आई एम सो स्मॉल और ये सब कुछ है. और अगेन मुझे इस चीज़ का डर है क्योंकि फॉर मी देयर आई डू नॉट वांट टू गेट मैरिड टू अ मच ओल्डर मैन. लेकिन जैसे आई एम लाइक 23 राइट नाउ, तो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड टू समवन हु इज़ लाइक 30 और 29 और 28 और इवन 27, लाइक 26 तक ठीक है. और तो इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे मतलब कि इस चीज़ का भी है, लेकिन ये नहीं है कि आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर या माई पेरेंट्स आर एक्टिवली लुकिंग फॉर समथिंग. लेकिन इफ समथिंग हैपन्स मे बी आई विल एग्री इफ द पर्सन इज़ गुड एंड नाइस. लेकिन एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ विद माई लाइफ. और पता है जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खटकती है ना, नॉट खटकती है लेकिन इट मेक्स मी अ बिट सैड इज़ दैट कि आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल alone or travel by myself or experience और मैं कोई adventure करूँ और discover करूँ और वो सब कुछ है. I have never done that. तो मैं अपनी मम्मा को भी बताती हूँ कि only reason I don't want to is because I have never traveled alone. I really wanted to experience something. Like there's people who like go for masters or bachelors and they live, और कुछ लोग होते हैं जो ट्रिप पे जाते हैं आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री. आई नेवर गॉट टू एक्सपीरियंस दैट एंड आई वांटेड टू डू दैट, ताकि मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं जो हूँ वो आई जस्ट वांट टू फुलफिश माई एवरी सिंगल विश दैट आई हैव फ्रॉम माई सेल्फ बिफोर गेटिंग इन टू the whole marriage and stuff, क्योंकि I want to travel or I want to do this. तो मैं नहीं चाहती कि I don't want, मतलब कि obviously a lot of people are like oh my god शादी के बाद कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, लेकिन I don't want to be dependent on that. I want to live every single thing before that, ताकि मैं उस जब चीज़ में जाऊँ तो मैं ये ना सोचूं कि मुझे ये चीज़ फुलफिल करनी है और मेरा मेन मकसद इस चीज़ का ये है कि अब मेरे साथ ये हो तो मतलब मैं ये कर सकूं और मुझे ये चीज़ प्रोवाइड की जाए. तो मैं अपने आप को खुद वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहती हूँ जिसका मैं ख्वाब देखती हूँ, ताकि जब मैं उस चीज़ में जाऊँ तो आई एम गोइंग प्योरली फॉर लव
and वो सब कुछ, and not for because I want these wishes to get fulfilled by some other man, right? So, लेकिन that's the thing, that's where I stand with the marriage stuff और के क्या scene है. So you never know. और जैसे मैंने मतलब मुझे लगता है कि obviously this is not happening anytime soon, but at the same time you never know. So I just wanted to prepare you guys कि you guys might lose me. I'm joking. Khair. I just wanted to talk about it क्योंकि मुझे पता है कि मेरा thought process इस चीज़ के बाद change हो जाएगा. अब this one friend of mine got into arranged marriage. मैंने arranged marriage, love marriage की बात ही नहीं की, वो मैं करती हूँ. खैर, this one friend of mine got into arranged, not she haven't got married yet. मतलब कि उसकी engagement हुई है, मतलब कि it's to arrange रिश्ता. लेकिन she is very happy और she can't wait to get married. और she's like कि मुझे बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि something like that could happen too. लेकिन मुझे मतलब कि I would have I think it's so beautiful when you love someone and you're just getting married to that person and you're really excited for that. And since I don't have that, तो इस वजह से I mostly look marriage as something really practical, लेकिन not in the romantic way, क्योंकि I cannot envision or know the person who I will be with. So I just think about, I am gonna do it to make my parents happy, or I'm gonna do it because I don't want to marry an old man, or I don't want to hear रिश्तेदारों के ताने. तो इस वजह से मैं अभी कर लूँगी क्योंकि मतलब लेकिन at the same time it's not for anything romantic कि oh my god I want love in my life. This is the thing कि I don't feel कि I need like romantic love right now, love from some opposite gender or just romantic love, right? तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी उस चीज़ की ज़रूरत, मुझे वो चाहिए या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना? Why I said कि I don't want love from opposite, मतलब कि I just romantic love, क्योंकि obviously there are opposite gender people who love you, but it's not like romantic love. तो ये मुझे लगता है कि opposite gender was not the correct term. लेकिन I don't seek for romantic love right now, or I don't think कि I need it right now, like I crave for it. There's a lot of people who get into a relationship और फिर जब they break up तो there's this void in their heart and they try to fill it, और मतलब इस वजह से they फॉरन वो किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं क्योंकि there's this void. और इस वजह से since I never felt it, तो I don't know how it feels like. इस वजह से I don't need it right now and I don't feel the need of it right now. इस वजह से I'm not actively looking for a relationship. और इस वजह से if I don't like someone, like if I don't feel butterflies for someone, तो I just am not interested to like get to know them and talk to them and see if we work out, right? इस वजह से मैं अपने दोस्तों को कहती हूँ कि नहीं, मेरे लिए किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने तुमसे ही देख के करना है तो उससे बेहतर है मैं अरेंज मैरिज कर लूँ. तुमने मैरिज होनी भी अरेंज है, ठीक है ना, और लेकिन माँ बाप को भी अलग से मनाना है, तो एक झंझट से तो मैं बचूँ ना एटलीस्ट. तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो फ्रेंड वाला आइडिया इज़ फ़िलहाल वेरी बैड. आगे जाके देखी जाएगी. मुझे लगता है कि ओवर के साथ साथ आपकी वो चेंज होती है, ठीक है. तो वी नेवर नो व्हाट विल हैपन, वी नेवर नो. लेकिन आई थिंक कि there are a lot of girls I have seen who are just generally excited to be married and be in love with the person even though they don't know the person, लेकिन they want love. लेकिन मेरा ये नहीं है. There's this one day when I was sitting and my mom came to me and said कि मैं बहुत परेशान हूँ रबिया, तुम्हारा दिल नहीं चाहता शादी करने का, मतलब तुम्हारा दिल भी नहीं चाहता कि कोई हो कुछ ऐसा. और मैंने कहा मम्मा नहीं, मेरा नहीं दिल चाहता, मतलब कि I don't really want a romantic उस तरह का love right now. Like I don't seek for it, my heart don't require it. Yes, I'll read fiction or I'll see some couple and I'll be like oh my god cute, I would like that for me as well. Lekin I just come back to like being happy single much. I am so content with being single. और mostly ये जब मैं बाकियों के रिलेशनशिप ड्रामास देखती हूँ तो मोस्टली ये होता है. और whenever even I feel a guy being interested, तो मुझे मतलब क्या I get nervous and anxious and I'm like I would never pray for
मतलब कि me and who or me when now, क्योंकि I can't deal with this. तो इस वजह से मुझे लगता है कि the only reason why I have this opinion right now is because there haven't been someone जिसको मैं देख के कहूँ कि oh my god maybe मतलब we could work out. और ये मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन आई डोंट नो हाउ इट विल बी विद अरेंज मैरिजेस, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली मेरी वही होनी है, और वो जब होगी तो फिर आई विल मेक अ होल पॉडकास्ट ऑन इट, ताकि आई कैन प्रिपेयर यू कि क्या हो रहा है और क्या होता है. लेकिन फ़िलहाल दिस इज़ वेयर आई स्टैंड, दिस इज़ वेयर आई फील कि आई डोंट नीड लव, रोमांटिक लव राइट नाउ. और लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आई वुड बी मोर एक्साइटेड टू गेट मैरिड इफ़ आई वुड बी एक्साइटेड टू बी विद द पर्सन. एंड वो तभी होता है व्हेन यू आर इन लव विद द पर्सन. लेकिन ऑल्सो आई एम नॉट सीकिंग फॉर लव. ऑल्सो देयर इज़ बिन नो वन जिसको देख के मैं मतलब कि हु हैव लव्ड मी दैट वे और whom I have loved that way. तो और तीसरी चीज़ ये है कि लेकिन स्टिल आई एम ओपन टू द आइडिया ऑफ मैरिज, क्योंकि आई डोंट वांट माई पेरेंट्स टू वरी एंड आई डोंट वांट टू मैरी एन ओल्ड मैन हु इज़ 33 years old. Like I don't want to do that. तो इस वजह से these are the reason I'll maybe if a proposal comes to my parents, so I'll be like, yeah, let me meet the guy and I'll see what happens. Maybe we'll meet and connect and I'm like, oh, that's nice. Like इस वजह से I am open to that idea. और इस वजह से मैंने अपनी मम्मा को बोला हुआ था पिछले साल when I was 22 कि I don't want it right now. लेकिन now I have told her कि oh, if anything comes and it seems right, तो obviously I'll do it. Like I don't want to be in it right now, and I'm very content. अब मेरा बस चले, I would want to live that life with my parents and my siblings. लेकिन I know कि that's not gonna, मतलब I'm not gonna feel the same thing for the rest of my life right now. तो इस वजह से मतलब कि इस वजह से this is what, मतलब कि I don't know कि मैं आगे क्या बोलूँ. It's not like कि my mom is actively seeking for me. वो भी मतलब कि शी इज़ चिल, लेकिन मतलब कि ऑब्वियसली शी डज थिंक अबाउट इट. और इस वजह से आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन, आई साइड के चिल करें, जो होना हुआ हो जाएगा, ठीक है. लेकिन मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाना कि तुमने मुझे बोला था कि नहीं, मैंने नहीं करनी इसलिए मैंने देखा ही नहीं. तो इस वजह से मेरी तरफ से चिल सीन है, लेकिन उनकी तरफ से भी चिल सीन है, क्योंकि अ पार्ट ऑफ हर ऑल्सो मतलब कि इवन दो शी wants me to be happy वो, लेकिन a part of her don't want to let me go that soon. Like she wants to be with me, she wants to spend time with me, she wants me to be here, and she also thinks कि I am not that old to be in a marriage और वो सब कुछ है. तो इस वजह से this is where I stand with marriage and with finding someone you love. And not finding, how can you find someone you love? You just love someone. You can find someone who loves you. I hope I find that. I got interrupted, लेकिन खैर I don't know, I don't make any sense, and it's like 3 a.m. in the night, तो makes sense कि why it doesn't make any sense. लेकिन this is it. लेकिन while we are on that topic, I would love to discuss what I would like to be in a man. What I would like to be in a man who's going to be my husband and my partner. ठीक है, तो we like discuss about this. I like sunshine guys. I like the guys who give golden retriever energy. That's a very famous term. I don't like grumpy guys. Fiction में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ के. रियल लाइफ में they're insufferable. I don't like grumpy guys who don't talk. मतलब I like nice guys. I like sunshine guys. I personally feel कि I am also sunshine girly, and I think a sunshine girly and a sunshine guy together will make the ultimate ultra sunshine couple, and that would be so good. ठीक है, तो as well as I like sunshine guys. I don't like grumpy guys. I don't like older guys, क्योंकि मुझे लगता है कि I'm very young by heart. और इस वजह से even कभी कभी ऐसा भी होता है कि there are some boys who are like
a year older or 2 year older than me, और मुझे वो बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं क्योंकि they're like they just appear too mature. तो obviously you should be mature and you should be practical, and I think there is, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नॉन सीरियस हूँ अपनी ज़िंदगी में. there is मतलब some seriousness in me, और मुझे पता है कि कहाँ पे serious होना है, but at the same time I also am very like happy go lucky and I like enjoying life, or there is youthness in me, and I would like that in a guy too, कि obviously you are serious but at the same time it's not like कि आप बस जिंदगी से आवाज़ार हो and you are not enjoying life. Like I would love my मतलब I would love someone who like, this is like very bare minimum, लेकिन who like really respects my parents and love my parents, and I obviously in return I would want to give that to the other person's parents too. Specifically with my parents, they're like very nice and very they're like the nicest people and they're very welcoming. So I want someone who can be the sixth member of this family. By that I don't mean कि बस यहाँ पे आके रहना है मेरे साथ, लेकिन इसका मतलब ये कि you could be like active in the family, or मतलब कि you can be a part of the family group chat. I don't want the person to make this family 4 बंदों की कि मुझे भी ले जाए अपने साथ. I want him to be the sixth member of this family and for him to like take that empty seat that is on our dining table for a while, जब तक मेरे बहन भाई अपने partners नहीं ढूंढ लेते. क्या पता वो मुझसे पहले ढूंढ ले, by the way. तो इस वजह से my parents are really nice and they would love a nice guy as a son-in-law and they would really enjoy it, and that would really make me happy, to make them happy. So it should be a guy who is like nice with communicating, who likes like talking with people, or who मतलब ये सब कुछ है, and he likes like communicating, वो सब कुछ है. I also really like, मुझे जब भी कोई पूछता है ना कि लड़का कैसा होना चाहिए, मैं कहती हूँ लड़का चार्मिंग होना चाहिए. देखें जो charisma होता है ना, that have nothing to do with your looks, nothing to do with your height, nothing to do with anything that is physical. You can, obviously some people are born charismatic, but you can also improve and be charismatic. तो I always say कि लड़का charming होना चाहिए और charismatic होना चाहिए. Charismatic और charming लड़कों की निशानी ये होती है कि everyone wants to talk to them and they are fun people, और वो जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो उनको बहुत important और अच्छा feel कराते हैं. ठीक है, तो इस वजह से the guy should be charismatic. I'll like make a whole podcast on whole, not on guys, but on how to be, मतलब कि what makes a person charismatic. लेकिन मुझे लगता है कि it's very important to have charm in you, कि अगला बंदा आपसे बात करके खुश हो और उनको अच्छा लगे और वो फिर से भी बात करना चाहिए आपसे. ड्राई कॉन्वर्सेशन ना हो, या ऐसा ना लगे कि आप अनइंटरेस्टेड हो, या फिर मतलब कि आप जब किसी रूम में हो तो योर पर्सनैलिटी शुड शाइन. आई थिंक I would not like to brag, लेकिन I think I do have a certain charm to myself. मुझे ऐसा feel होता है क्योंकि मतलब I do feel that. तो इस वजह से मुझे लगता है कि I would love the person I'm gonna be with to be charming and to be charismatic. Like that is very important. और मुझे नहीं पता कि कोई इस चीज़ के बारे में सोचता है कि नहीं सोचता, लेकिन मैं 2 ही चीज़ें सोचती हूँ, सनशाइन charismatic, sunshine charismatic. तो इस वजह से he needs to be charming, or again that has nothing to do with the way you look, or it have all the way you present yourself and the way you like talk to other people and your personality. ठीक है, मैं इतनी important बात बोलना भूल गई कि the guy should like be knowledgeable, or he should be educated. उसको जो है certain level का intellect हो और ऐसी conversation करने में interested हो. मुझे लगता है कि I do like nerd guys. I don't know, लेकिन ज़्यादा भी नहीं. I don't like someone who like मतलब कि shows off, लेकिन at the same time मतलब कि if you are a humble nerd I wouldn't mind. लेकिन इवन इफ़ यू आर नॉट, लेकिन नॉर्मल लेवल का एटलीस्ट, मतलब कि ये नहीं कि बस ज़िंदगी की मस्ती में करते रहो. यू शुड हैव सर्टेन लेवल ऑफ लाइक
intellect to yourself. Or I do podcast, so obviously I have a lot to say and I have a lot to tell, and I have मतलब I can, मुझे लगता है कि I can really do a good conversation. तो इस वजह से I need someone who can be like that too, and maybe he could join me in Brown Girl Rants and be the co-host in some episodes, and it would be so much fun, literally. I also think कि the person should have like tolerance. मुझे जैसे for me I'm really flexible, and मैं अपनी मतलब कि if it's my mistake, मैं बहुत मतलब I am never like कि oh my god I am always right या मैं हमेशा सही हूँ. I accept my mistakes, मैं अपने आप को correct बहुत जल्दी करती हूँ. I try to educate myself और ये सब कुछ है, and I always try to be the better version of myself. तो मैं खुद ही मतलब कि I keep working on myself. तो इस वजह से मुझे लगता है कि for me if मतलब कि मैं कोई चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ और मुझे कोई और नॉलेज दे रहा है, तो आई एक्सेप्टेड दैट आई एम रॉन्ग. तो एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इफ़ आई मीट अ गाय और मैं मतलब कि आई लिटरली जस्ट आस्क देम कि what do you think about feminism, or what do you think about Barbie movie, or what you think about BTS, because these are the things that really make men mad, because these are the things that women really enjoy. And I've seen a lot of people who just hate them because women like them. Or I don't like people who hate something for no reason at all. मैं ये नहीं कह रही कि you need to be a die hard stan of, लेकिन at the same time if you're just hating them for no reason at all, that would piss me off. I understand if that things are not your taste, you should know how to like address it in a respectful way. As I said earlier, I am very flexible, or I am मतलब every day I try to be a better version of myself. I adapt to things that are given to me, or I try to make the best out of it, everything. I'm not like कि oh I'll stay the same. मुझे पता है कि I'll change with time. हालात इंसान को बदल देते हैं, लोग बदल देते हैं, और माहौल बदल देते हैं, ठीक है ना. लेकिन you cannot ask someone to change for you. लोग हालात से बदलते हैं. लोग जब किसी और को देखते हैं तो किसी और की इन्फ्लुएंस में बदलते हैं. लोग इस तरह बदलते हैं. चेंज, आई डोंट थिंक चेंज could be intentional, or change could be overnight. लोग वक्त के साथ साथ बदलते हैं. I am not the person I was 1 year ago. लेकिन I did nothing intentionally to change myself. I just changed over time, over people, over seeking more knowledge, over being more educated, over making more podcasts. तो मुझे लगता है कि over interacting more people, being with more people. तो मुझे लगता है कि you cannot expect someone to change. और अगर आपको पहले ही उस इंसान से तकलीफ है तो फिर आप उसके साथ मतलब कि आप उससे ऐसे उसके साथ रिलेशनशिप में ना हो, उसके साथ ऐसे इस तरह के. तो इस वजह से मुझे लगता है कि फॉर मी आई एम रियली समवन, आई सीक फॉर समवन हु हैव द सेम टर्मिनोलॉजी एज मी, क्योंकि यू कैन नॉट लाइक चेंज समवन. ऑब्वियसली अगर आप, मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हो सकती है कि ऑब्वियसली देयर आर बैड हैबिट्स दैट यू नीड टू चेंज एंड, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खुद भी पहले जहन में बना लेना चाहिए कि अगर मुझे लगता है कि ओ आई डोंट वांट समवन हु स्मोक्स, तो मैं पहले ही ये रख दूँगी कि आई वॉन्ट मैरी समवन हु स्मोक्स. तो अगर जो है मुझे कोई इंसान मिलता है जो कि स्मोक करता है तो मैं उसको उसी वक्त कह दूँगी कि ओ यू स्मोक, तो मतलब कि इट कैन नॉट वर्क आउट फॉर मी. लेकिन अगर मैं ये जानते पूछते हुए वो चीज़ में गई हूँ और उसके बाद मैं मतलब कि दैट कुड बी अ रियली डम एग्जाम्पल, क्योंकि स्मोकिंग इज़ हार्मफुल. लेकिन जैसे ओके लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्मोकिंग. गेमर, ओके मैं कोई बंदा, समवन इज़ अ गेमर राइट, दे लव प्लेइंग गेम्स, और मैं ये सब, और मुझे गेमर्स नहीं पसंद और मुझे ये चीज़ अनॉय करती है, और मैं वो जानते बूझते हुए, और मुझे पता है वो बंदा कितना एडिक्ट है, लेकिन मैं फिर भी आ जाती हूँ. तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट द पर्सन, और मैं इस चीज़ पे लड़ नहीं सकती क्योंकि मुझे पहले से पता था. लेकिन इट्स नॉट लाइक कि अगला बंदे को ये फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपने आप को चेंज ना करे. जब आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें आती हैं, अगेन यू चेंज विद हालात और लोग और वो सब कुछ, और अगर एक इंसान फिर भी अपने आप को उस चीज़ के लिए चेंज नहीं कर रहा तो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो डम्प टू. लेकिन इफ़ यू हैव लाइक मतलब कि दैट्स वेयर यू ड्रॉ द लाइन.
तो मुझे लगता है कि और यू कैन नॉट बी पेशेंट विद समवंस चेंज, और ऑब्वियसली यू कैन आस्क देम कि आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैं शायद इस चीज़ के बारे में सही तरह बात नहीं कर सकती क्योंकि आई एम नॉट इन इट, आई डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क. लेकिन आई जस्ट फील के जैसे मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि इफ़ यू थिंक कि आई लाफ टू मच और आई एम टू लाइक cheerful for my age, तो और someone comes and tell me कि नहीं तुम मतलब कि अपने आप को चेंज कर लो, थोड़ा सा rigid हो जाओ, थोड़ा सा इस तरह हो जाओ उस तरह हो जाओ, तो मुझे वो चीज़ बुरी लगेगी क्योंकि वाई शुड आई, मतलब कि अगर मैं नेचुरली उस चीज़ से आउट ग्रो कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी और की वजह से इस चीज़ से नहीं करना चाहती. तो लेट पीपल आउट ग्रो ऑफ थिंग्स. तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगले बंदे में भी अगर ऐसी आदत है और वो मैं जानते पूछते हुए कर रही हूँ, तो I'll just let them outgrow of things. You know what I mean, right? इस वजह से मैं अगले बंदे की पर्सपेक्टिव से कह रही थी, क्योंकि अगर मैं अपने लिए वो चीज़ नहीं चाहती तो मैं दूसरे के लिए कैसे सोच सकती हूँ. ओके, yeah, I cannot think of anything else. मुझे लगता है कि that's it for this podcast, for this like list, क्योंकि I cannot think of anything else. मुझे पूरी दुनिया ये बोलती है कि जो आप सोचते हो वैसा आपको कभी भी नहीं मिलता, and I know I am very practical about marriage, और I actually don't see it as a romantic thing. लेकिन I know कि मतलब कि no one's perfect and you cannot just find or build a man that, or a man could build a woman कि वो हर चीज़ में fit करे, और आपको बहुत सी चीज़ें you have to let go and you have to ignore and you have to like move on, और वो सब कुछ है. We'll talk about it when the thing actually happens. मैं experience किए बगैर किसी चीज़ के बारे में मशवरा नहीं दे सकती, क्योंकि I'll say something very मतलब कि that won't be true and people could get offended. ठीक है, जो actually उस चीज़ से go through करे तुम्हें पता है नहीं, मैं कॉस किए जा रही हो तो तो बेसिकली दैट्स द थिंग कि मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू टॉक अबाउट इट. जब मैं हो जाऊँगी तो आई विल लेट यू गाइज नो, मतलब ताकि यू गाइज कुड एक्ट लाइक क्लेवरली एंड बेटर देन मी. मैंने तो जो खच्चे मारनी हो मैंने मारनी. नहीं, आई होप इट गोज स्मूथली फॉर ऑल ऑफ अस. लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट क्योंकि मुझे उसका पता नहीं है एंड आई डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल. लेकिन आई होप कि यू गेन्ड समथिंग आउट ऑफ दिस पॉडकास्ट. आई डोंट नो, मे बी यू डिड समथिंग. Let me know what you think about marriage and where you stand, or let me know in the Instagram DM. I would love to know. I would love to have a conversation with you regarding that. So let me know what you think. I'll be waiting for your guys' replies and responses. Or I'll see you guys next week with another podcast. Maybe I'll do it in the quilt again. Let me know if it was okay for me to just lay down and talk about it. The conversation, since I'm laying down, the conversation is very chill. I don't know, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैं लेटी हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से आज बात की है, लेकिन टॉपिक भी ऐसा था तो it was fine. तो लेकिन if you guys hated it and you guys want me to be more serious, तो फिर let me know. I'll be more serious. But that's it for the podcast. I love you guys so much. I love you guys so much, and follow me on Instagram and pray for me, क्योंकि even though I wanted to take December slowly, लेकिन December बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है, मुझसे नहीं हो रहा. तो pray for me, और yeah, bye.